اچھا سوال کیا ہے کہ کلیوگ میں سب سے بڑا بھگوان کون ہے؟ میرے بھائی سب سے پہلے تو بھگوان کی ڈیفینیشن غلط ہے۔ اگر آپ بھگوان سنسار کے سچے مالک کو سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں کلیوگ ہو، ستیوگ ہو، تریتا یگ ہو، کوئی سا بھی یگ ہو، وہ سب یگوں کا مالک ہے۔ اور ایکم براہم دوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، وہ مالک ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ ناتسیہ پرتیما استی، اس خدا، اس بھگوان، اس اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسکلچر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے، کوئی پورٹریج نہیں ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ اور دھرتی پر جہاں چاہیں پوتر ہونے کے بعد اس کی بھکتی کر سکتے ہیں، اس کی پوجا کر سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر کوئی روپ آکار اپنے سامنے نہ رکھیں۔ بس یہ گمان رکھیں کہ وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اس مالک کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ سر جھکاتے سمے آپ مورتی کا خیال اپنے من میں لائیں کہ مورتی کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں۔ رام جی کی مورتی کا خیال لائیں، کرشن جی کی مورتی کا خیال لائیں، ہنومان کی مورتی کا خیال لائیں، نہیں، بس اس کو بن دیکھے جو ہے اس کو ہم خیال میں نہیں لا سکتے۔ سنسار کے سچے مالک کو بن دیکھے اس سے ڈریں، اس کو یہ پسند ہے، اور بن دیکھے ہم اس کا اپنے خیال میں یہ لائیں کہ وہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا روپ آکار کوئی ہے ہی نہیں، آپ اس کو کیسے خیال میں لائیں گے؟ مورتی کا تو روپ آکار ہے نا، آنکھ ناک کان، اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہے، اس کے پیر ہیں، تو اس کو تو خیال میں لا سکتے ہیں آپ۔ جس کا کوئی روپ آکار ہی نہیں ہے اس کو کیا خیال میں لائیں گے؟ وہی تو سچا مالک ہے سنسار کا۔ تو سب سے بڑا مالک وہی ہے، اور سب اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں۔ وہ پیدا کرنے والا سب کو اکیلا ہے، باقی سب چیز پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہٹ کر کے پیدا کرنے والے کے آگے نماز میں سر جھکائیں۔ اگر آپ نماز کے علاوہ کسی کے بھی آگے سر جھکائیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ پیدا کرنے والے کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکائیں گے۔ اس لیے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر کے پیدا کرنے والے کی پوجا کریں جو نراکار ہے۔ تو بھئی سب سے بڑا بھگوان، سب سے بڑا مالک وہی ہے جو پوری کائنات کو خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے، مگر دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ موت سے پوتر ہے۔ اب اس مالک نے سارا جہان پیدا کیا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، تو ہم اس کا ادھیکار اسی کو دیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس نے کہا ہے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی شرک سے کمتر جو گناہ ہوگا اس کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کا ادھیکار، کہ اللہ ہی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اب اس کا بہت سارا گیان ہے، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے جو ہے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور شرک کے بارے میں بہت ساری ویڈیو ہیں، اللہ کا ادھیکار کیا ہے انسانوں پر، کیوں اس نے پیدا کیا ہے، کیوں اس نے جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اس پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں۔ اب یہ کیوں کہا کہ شرک سے کمتر گناہ جو ہوگا اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو تو پکی مہر لگا دی کہ معاف کرے گا ہی نہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان، اب کوئی انسان ہے انجانے میں شرک کر رہا ہے، غلط ماحول میں پیدا ہو گیا، انجانے میں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں یہ ثابت کرے گا کہ میں ایک ہوں۔ اب کوئی انسان انجانے میں کر رہا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، تو اللہ ایسے انسان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اب جو انسان جان بوجھ کر اللہ کے حق کو مارے، اللہ کے ادھیکار کو مارے اور شرک کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، جان بوجھ کر کرے، کھلا رہا ہے اللہ، پلا رہا ہے اللہ، پیدا اس نے کیا ہے، مگر نام کسی اور کا، گڑگان کسی اور کر رہا ہے، تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کچھ نہ تھا، اللہ تھا، سب سے بڑا ہے وہ، شروع سے اسی نے کائنات بنائی ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ تو کوئی سا بھی یگ ہو، سب کا مالک اللہ ایشور ہے۔ اس کی مرضی کو پہچانو اس سے پہلے کہ جیون ختم ہو جائے، اور گیان حاصل کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی۔
तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया
वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना, जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके। ए पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो